Hello everyone. This is Shruti Pandey from the Department of Chemical Engineering at IIT Kanpur, and I welcome you all to the lecture number 6 of the chapter Aldehydes, Ketones and Carboxylic Acids in Chemistry. So till now we had already finished off with the IUPAC and the common name system of naming of the aldehydes and ketones and the carboxylic acids. And we had also in the previous lecture we had finished off with the preparation like of the aldehydes and ketones. We have completed all the methods and techniques that are used to prepare aldehydes and ketones. So in today's lecture, I would first give you a few minutes of revision. It would be quick, like I'll draw a flowchart kind of thing just for the purpose of revision, so that you would be able to understand what are the different ways that of preparation. And then we will move on to the physical properties. So let's start with a quick revision. So first of all, talking about the common ways of preparation of aldehydes and ketones. Okay. So common ways में we dealt with two methods, like in which there were two kinds of reactants. First was using the alcohols and the second was using the hydrocarbons. Okay. In alcohols also there were two methods. The first was the oxidation. Okay. इसमें there were we need to use the oxidizing agents for this oxidation of alcohols, and we did this in detail, where primary alcohol, and like we need to differentiate it. We need to use different kinds of reagents for all the three kinds of alcohols. Okay, and the results would also be different. So that is why I am just writing it down in this way. So for the case of primary alcohol, using the strong oxidizing agent that would directly oxidize the alcohols to the carboxylic acid, and that is not the desired product. Okay, so इस वजह से what we do is we use the mild oxidizing agent, and here the example are CrO3 in the anhydrous medium, or PCC, that is pyridinium chlorochromate. Okay, so these two are for oxidizing the primary alcohol to the aldehyde. Okay, and these two, they give aldehydes only. Okay, मतलब the primary alcohol will result in the aldehydes. Now the oxidation of secondary alcohol, we use chromic anhydride, CrO3, but here the product would be ketone. ठीक है, तो हमेशा याद रखना है कि primary alcohol will give aldehyde and secondary alcohol will give ketone on oxidation. ठीक है, reagent B, you should be aware of all the different kinds of reagents. For the case of tertiary alcohol, no oxidation on the use of oxidizing agents. ठीक है, मतलब ऑक्सीडेशन ऐसा होगा कि क्लीवेज हो जाएगा, और मतलब CC बॉन्ड क्लीवेज हो जाएगा, एंड दैट वुड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्टली, एंड दैट टू इन द एक्सट्रीम कंडीशंस. ठीक है, तो हमारे डिजायर्ड प्रोडक्ट्स नहीं आएंगे. ठीक है, देन इन अल्कोहल्स वी डिड अनदर थिंग, दैट वाज डिहाइड्रोजनेशन. ठीक है, डिहाइड्रोजनेशन में क्या था, दैट द वेपर्स ऑफ द अल्कोहल वुड पास ओवर द हीटेड कॉपर at 573 Kelvin. ठीक है, so this is the way of dehydrogenation. इसमें भी the results for different kinds of alcohols were different. Aldehyde, ketone, 3-degree alcohols, they will give alkenes. So basically this last one is not the dehydrogenation, it is dehydration. So that is why I am mentioning minus water over here. ठीक है, क्योंकि वाटर रिमूवल हो रहा है और ये हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं है, इस वजह से वी कैन नॉट मेक एल्डिहाइड एंड कीटोन्स यूजिंग द टर्शियरी अल्कोहल. नाउ इन द हाइड्रोकार्बन केस, द फर्स्ट वाज द ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन्स. ठीक है, अच्छा, ओजोनोलिसिस में क्या होता है, वी टेक द एल्कीन. इसमें ज्यादा कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है. एल्कीन्स को व्हेन यू रिएक्ट विद ओजोन यू विल गेट द ओजोनाइड. ठीक है, I also told you a trick that I will mention just now.
कि प्रोडक्ट कैसे डायरेक्टली लिख सकते हैं इवन विदाउट द ड्राइंग द स्ट्रक्चर ऑफ द ओजोनाइड. ठीक है. So on reaction of this ozonide with zinc and water, you will either get aldehyde or ketone. ठीक है, वो depends completely on the structure of the alkene that we are using. Aldehyde or ketone. ठीक है. अच्छा, this method is also used for the detection of the position of the double bond. कैसे? मान लो यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे कुछ कुछ प्रोडक्ट्स हैं, कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं यहाँ पे. ठीक है, ऑन दिस 4 बॉन्ड्स. ये कुछ भी हो सकते हैं. ठीक है, इट कैन आइदर बी हाइड्रोजन और सम अदर कार्बन एटम और सम अदर बिग ग्रुप. ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है. नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज, आपको ओजोनाइड बनाने की जरूरत नहीं है. इफ यू नीड टू राइट डाउन द आंसर फास्ट, यू सिंपली आप क्या करोगे, आप इसको ब्रेक करोगे यहाँ से. ठीक है, जब आप ब्रेक करोगे तो क्या होगा, ये वाला कार्बन अलग डबल बॉन्ड के साथ में और ये वाला कार्बन डबल बॉन्ड के साथ में अलग, ऐसे. ठीक है, और यहाँ पे O लगा दोगे, यहाँ पे O. ठीक है, तो ये कार्बोनिल कार्बन बन जाएगा. डबल बॉन्ड की पोजीशन से ही ऑक्सीजन लग जाता है. ठीक है, सो दिस इज द फास्टेस्ट वे ऑफ कमिंग ऑफ गेटिंग टू द प्रोडक्ट इन द केस ऑफ दिस काइंड ऑफ रिएक्शन. ठीक है, नाउ द लास्ट इज द हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन. ठीक है, इसमें आप क्या करते हो, द मेथड इज दैट यू टेक एन एल्काइन एंड हमारे रिएजेंट्स क्या होते हैं, HgSO4, H2SO4 एंड द टेम्परेचर इज 333 केल्विन. ठीक है, यहां से वी विल गेट अल्कोहल्स. ठीक है. अच्छा, दिस मेथड में ऑल्सो वी डिस्कस्ड द बैक एंड थिंग दैट इज हैपनिंग, मतलब जो पूरा मैकेनिज्म हमने डिस्कस किया था कि विनाइलिक कार्बोकेटाइन बनता है एंड वी नीड टू लुक एट द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन दैट इज बीइंग फॉर्म्ड. So उस केस में 3 degree is stable than 2 degree which is even stable than 1 degree carbocation. ठीक है, so that is the reason why we apply the Markovnikov's rule. ठीक है, तो Markovnikov's rule कैसे लगाते हैं, the carbon like the carbon which has, यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रही हूँ, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल और ये काफी जगह पे, ये सिर्फ एक जगह पे नहीं बल्कि बहुत सारी जगह पे ये यूज होता है. सो एडिशन रिएक्शंस में, तो यू नीड टू लर्न दिस कि जहाँ पे यू हैव मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, मतलब जिस कार्बन पे यू हैव मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, वहां पे हाइड्रोजन विल गेट अटैच्ड और एडेड. ठीक है, और जो बाकी दूसरा वाला कार्बन होगा विद द लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, वहां पे जो दूसरा आयन होगा वो अटैच होगा. ठीक है, जो भी चीज ऐड हो रही है ओवरऑल, तो ये वाली चीज आप यहाँ पे लगाओगे बिकॉज दिस इज द एडिशन ऑफ वाटर. ठीक है, तो एक जगह H लगेगा एक कार्बन पे और दूसरे कार्बन पे OH ऐड होता है एंड दैट इज व्हाई द अल्कोहल्स आर फॉर्म्ड. नाउ आफ्टर दिस आइसोमराइजेशन हैपेंस एंड वी गेट एल्डिहाइड एंड और कीटोन. ठीक है. अच्छा, एल्डिहाइड तभी मिलेगा व्हेन वी हैव इथाइन, मतलब जो एल्काइन हम लोग यूज कर रहे हैं, इफ इट इज इथाइन वी विल गेट द एल्डिहाइड. ठीक है, एंड दैट इज एसिटिल्डिहाइड विद 2 कार्बन एटम्स. In the case of ketone, like if you are using any other aldehyde or if you are using any other alkyne, then you will always get a ketone. ठीक है, so ऐसा होता है. So this was the overall revision for the common ways of the preparation of aldehydes and ketones. Now we will move on to the preparation of aldehydes. With the use of these methods, only aldehydes can be prepared. ठीक है, तो इसमें ketones नहीं आते. ठीक है, so we will do the classification on the basis of the reactant that we are using. ठीक है, तो पहला reactant है अकाइल क्लोराइड और एसिड क्लोराइड, मतलब RCOCl. ठीक है, और इसी को हम लोग रोजन मंड रिडक्शन भी बोलते हैं. So this is a name, the special name of this reaction, and you need to remember this. I have told you so many times. The reaction would be simple RCOCl, and because it is reduction, so that means आपको hydrogenation वाला reduction है, so you will need hydrogen and a catalyst, that is palladium
in barium sulfate. So finally you will get to RCHO, that is the aldehyde. Okay, so from alkyl chloride to aldehyde. Now another reactant, that another compound that you can use to make aldehyde is नाइट्राइल. नाइट्राइल मतलब CN ग्रुप जो लगा होता है. अच्छा, इसके वी डिस्कस्ड टू वेज. द फर्स्ट वन वाज व्हेन यू यूज यहाँ पे RCN with SnCl2 मतलब स्टैनस क्लोराइड in HCl in the presence of hydrochloric acid. ठीक है, so the intermediate that you get is imine, and then when you hydrolyze this intermediate you finally get to aldehyde. Okay. The second method of preparing aldehyde using nitrile is simply the reduction using Debal H. ठीक है, तो ये हमारा RCN है. फर्स्ट हम क्या करेंगे, will use a reducing agent, that is Debal H, and the second step is we will do the hydrolysis, जैसे कि we did in the first step, in the first kind of reaction. So यहाँ पे भी finally you get RCHO. Another compound that you can use is ester. ठीक है, ester क्या होता है, RCOOR prime. ठीक है, so इसमें भी similar, we need to use Debal H and then hydrolyze, and it will result in the aldehyde, corresponding aldehyde. ठीक है, the last compound that you can use is hydrocarbons, simple hydrocarbons, and these are used mainly for the preparation of aromatic aldehyde. ठीक है, अभी तक हमने जो भी methods पढ़े उनसे you can also get aromatic or the aliphatic both. ठीक है, तो अभी इससे सिर्फ aromatic aldehydes form होंगे. And the first category is the oxidation of methyl benzene or toluene and its derivatives. ठीक है, तो derivatives मतलब when you are having some other substituents added to some other position in the benzene ring. ठीक है, और इसमें I'm writing here oxidation of toluene, and the compounds that we discussed was it is chromyl chloride, CrO2, Cl2, or you will get chromic oxide which is CrO3. ठीक है, ये हमारे oxidizing agents हैं which we are using here, and the result is benzaldehyde. ठीक है, the next one is the chlorination. ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा, oxidation, then we get to chlorination plus hydrolysis. ठीक है, here what we do is we simply react the toluene or the derivative with chlorine in the presence of light, and then water, मतलब hydrolysis. Then we again get the benzaldehyde. ठीक है, so the products are almost they are same. If I use the derivative, the product will also change. Next thing is the important reaction because it is a named reaction. So this is Gattermann-Koch reaction. ठीक है, इसमें हम लोग कौन सा reagent यूज करते हैं, we use carbon monoxide in HCl plus anhydrous AlCl3 or cuprous chloride CuCl2. ठीक है, so here also the product would be similar, benzaldehyde or its derivative. So that is why we can say that there are basically four types of compounds that can be used to prepare aldehydes. ठीक है, now for the preparation of ketone we had discussed three ways. I am a bit fast over here while I am discussing all these because I have already discussed them in detail. It's only because of the revision thing that you must you get aware of everything that we had done till now. ठीक है, तो ketones में first we used alkyl chloride
एंड इसमें वी ऑल्सो स्टार्टेड अबाउट द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. ठीक है, तो इसमें बेसिकली व्हाट वी डू इज वी यूज आर प्राइम COCl एंड R2CD, मतलब डाई एल्काइल कैडमियम. ठीक है, सो एंड आर प्रोडक्ट इज, ठीक है, सो वी डिस्कस की जो अकाइल क्लोराइड से एल्काइल ग्रुप आ रहा है R प्राइम, और जो कैडमियम डाई एल्काइल कैडमियम से आ रहा है R, इन्हीं को कंबाइन करके द फॉलोइंग कीटोन इज फॉर्म्ड. ठीक है, नाउ द सेकंड कंपाउंड इज नाइट्राइल. और ये जो डाई एल्काइल कैडमियम होता है ये प्रिपेयर कैसे होता है, दैट वाज द फर्स्ट स्टेप यूजिंग द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. ठीक है, now in the case of nitrile, suppose we are I'm writing the general reaction. You are having some R CN plus some other R prime MgBr. यहाँ पे भी Grignard reagent use हो रहा है. And finally the product is like when you do this reaction in the presence of ether and then hydrolyze it. ठीक है, so 2 step reaction होता है. ठीक है, final product कैसा होता है, ये R रहेगा, this is double bond O and this is R prime. ठीक है, तो RCN से आपको R लेना है, इस वाले से R प्राइम लेना है, और फिर इनको कंबाइन करके you get the ketone. Now this is the Friedel-Crafts acylation. Here also acyl chloride is being used, and a benzene ring is also there. ठीक है, तो Friedel-Crafts acylation, this is also a very important kind of reaction. So इसमें क्या होगा, you have one benzene ring plus, ठीक है, and in the presence of anhydrous AlCl3, and the product would be R. ठीक है, so all these I have only written down the general reaction, क्योंकि R और R prime कुछ भी हो सकते हैं. ठीक है, they can either be simple phenyl ring, है ना, benzene ring हो सकता है, that is also possible. तो these were the preparation of ketones. ठीक है, then after that we also did a lot of questions. So now the this topic of preparation is complete. Now we come to the physical properties of aldehydes and ketones. ठीक है, so I'll discuss a few of the physical properties. तो हम लोग ट्रेंड्स डिस्कस करेंगे. ट्रेंड्स मतलब कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो इंक्रीज कैसे हो रही हैं, डिक्रीज कैसे हो रही हैं, व्हाट इज द रीजन ऑफ देयर इंक्रीजिंग और रिड्यूसिंग. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द स्टेट. स्टेट मतलब लिक्विड, गैस और सॉलिड. ठीक है, तो मीथेनॉल इज अ गैस एट रूम टेम्परेचर while ethanol is a volatile liquid. ठीक है, और इसके अलावा all the other aldehydes and ketones, they are liquid or solid at room temperature. This is only for the purpose of information. We generally don't need to learn all these things. Now coming to the boiling point. So boiling point is important because you may get the questions in which you need to arrange the compounds on the increasing or the decreasing order of the boiling point. So here आपको reasons अच्छे से पता होनी चाहिए, otherwise you will get confused because there are so many kinds of compounds. तो आप सिर्फ इसको रट के नहीं जा सकते हैं. ठीक है, you need to understand the concept, क्योंकि concept अगर समझ नहीं आएगा तो you will not be able to apply those at the time of examination, and then you'll get confused. ठीक है, so aldehydes and ketones, they have higher boiling points as compared to the alkanes and the ethers of the comparable molecular mass. ठीक है, अच्छा, one point generally students they forget is this thing that I repeatedly mentioned is comparable molecular mass. ठीक है, क्योंकि अगर molecular mass में बहुत ज्यादा डिफरेंस है कंपाउंड्स के, तो आप उन्हें कंपेयर ही नहीं कर सकते, क्योंकि इतने ज्यादा वेरिएशन होते हैं कि अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बहुत ज्यादा हैं तो कोई एक प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा डिफर कर जाएगी. ठीक है, तो उन वेरिएशंस को आप कैप्चर नहीं कर सकते. ठीक है, तो कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास और यू कैन से द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, दे आर अप्रोक्सीमेटली सेम. ठीक है, एक दो कम ज्यादा हो सकता है बट अप्रोक्सीमेटली सेम होना चाहिए नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. ठीक है, और मॉलिक्यूलर मास भी कंपेरेबल होना चाहिए. ओनली देन we can correctly or accurately compare these physical properties.
ठीक है. So now I was telling कि aldehydes and ketones have higher boiling point than the alkanes and ethers. And what is the reason? Because देखिए, ये जो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में कार्बोनिल कार्बन होता है, एज आई हैव टोल्ड यू, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एक पोलराइजेशन हो जाता है. पोलराइजेशन मतलब द सेपरेशन ऑफ चार्जेस, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो दैट विल अट्रैक्ट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. दीज शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा. सो दैट इज वाई आफ्टर पोलराइजेशन इफ यू सी दिस मॉलिक्यूल, ठीक है, तो वो आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा, प्लस. ठीक है, तो ये न्यूट्रल नहीं रहता आफ्टर पोलराइजेशन. ठीक है, सो इसका मतलब है कि बिकॉज ऑफ दिस हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, बहुत ज्यादा हाई डाइपोल मोमेंट इज देयर ऑफ दिस कार्बोनिल ग्रुप. ठीक है, सो बिकॉज ऑफ दिस लार्ज डाइपोल मोमेंट द डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से कम इनटू प्ले. ठीक है, तो तब डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस होते हैं दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस होते हैं. सो बिकॉज ऑफ दैट interaction, because they are strong, so that is why more they have more boiling point. ठीक है, like in simpler words, if I want to summarize this, I can say that because of the polarization, the dipole moment builds up. ठीक है, and because of that dipole moment, intermolecular these interactions they are important. ठीक है, intermolecular dipole dipole interactions. Intermolecular dipole interactions, they are stronger as compared to the normal van der Waals forces and all. ठीक है, तो इन interactions की वजह से in the carbonyl groups, ठीक है, I'm talking about the aldehydes and ketones. ठीक है, so because of these intermolecular dipole interactions, जो bonding होती है वो और ज्यादा strong हो जाती है, and that is why you need more energy, ठीक है, to vaporize the compound. ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि कौन से कितने टेम्परेचर पे ये जो हमारा जो कंपाउंड है दैट विल गेट वेपराइज्ड. ठीक है, दैट विल कन्वर्ट इनटू गैसियस स्टेट, बॉयल होने लगेगा. ठीक है, सो दैट इज व्हाई इंटरेक्शंस जितने स्ट्रांग होंगे उतना ज्यादा हमें एनर्जी देना पड़ेगा, एक्सटर्नली एनर्जी देना पड़ेगा टू वेपराइज द कंपाउंड. ठीक है, सो बिकॉज ऑफ दिस रिजल्ट क्या होता है कि aldehydes and ketones have more boiling point, BP stands for boiling point, than alkanes and ether. ठीक है, अच्छा एक और कंपैरिजन होता है अल्कोहल से. ठीक है, तो लाइक व्हेन यू कंपेयर अल्कोहल्स एंड द aldehydes or ketones of the comparable masses, then you can say you can simply observe कि जो boiling points होते हैं aldehyde और ketone के, they are lower as compared to the alcohol, and this is solely because of the absence of intermolecular hydrogen bonding in aldehydes and ketones. ठीक है, क्योंकि आपस में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती. अल्कोहल में क्या होता है, यू हैव COH, राइट, ऐसा होता है अल्कोहल. ठीक है, तो इसमें यू हैव O एंड यू हैव H. ठीक है, तो इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है. ठीक है, ये वाला O जो है वो इस वाले H से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, ये वाला H है वो इस वाले O से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है. ठीक है, तो दिस केस इज नॉट पॉसिबल इन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. ठीक है, सो यू कैन राइट द रीजन इज नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग in aldehydes and ketones, and because of the absence of hydrogen bonding in aldehydes and ketones, their boiling point is less as compared to alcohol. ठीक है, because alcohol में intermolecular hydrogen bonding होती है. ठीक है, तो जनरली इन्हीं कंपाउंड से कंपेयर किया जाता है aldehydes और ketones को. ठीक है, सो इफ आई नीड टू समराइज द ट्रेंड, ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, एल्केन्स, क्योंकि इनमें सिंपल वॉन डर वाल फोर्सेस होते हैं. ठीक है, एल्केन्स में अगर फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन के बारे में बात करें तो सिर्फ कार्बन है और हाइड्रोजन है. ठीक है, तो और कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है एटम्स के बीच में. ठीक है, तो यू ओनली हैव वॉन डर वाल फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन, जो कि सबसे वीक माने जाते हैं बाकी इंटरेक्शन से. ठीक है, इस वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा. देन यू विल हैव ईथर्स.
ईथर्स में बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ओ इन बिटवीन, ईथर्स क्या होते हैं, आर ओ आर प्राइम ऐसे होते हैं ना, सो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस ऑक्सीजन एटम हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बट दैट इज वेरी मच लेस एज कंपेयर टू दी अल्कोहल्स, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बट काफी कम होती है, तो इस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट इज मोर देन एल्केन। देन वी कैन पुट एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ठीक है, क्योंकि इनमें कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, डाइपोल डाइपोल interactions, and then the highest boiling point is of alcohol because of intense hydrogen bonding, intermolecular hydrogen bonding, ठीक है। अल्कोहल में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है ये, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग एज कंपेयर टू वॉन डर वाल फोर्सेस वैसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होती है। सो दिस इज द जनरल ट्रेंड इन द केस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। You should understand this by getting into the details of these forces जो भी उन compounds में लग रहे हैं, ठीक है। So now coming to the solubility, ठीक है। तो solubility भी हम दो तरीके के solvents में देखते हैं। First we talk about water and then about the organic solvents, ठीक है। Water is a polar solvent. So solubility in the case of water, we can say that the lower members they are miscible in water because of the hydrogen bond formation with the water molecules, ठीक है। अच्छा, अभी we were talking about the hydrogen bonding. One thing that you need to be thorough with is कि कंफ्यूज नहीं होना है। एक होता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एक होता है इंट्रामोलिकुलर, ठीक है। तो इंटरमोलिकुलर में क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल लाइक इंटरमोलिकुलर में होता है कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है, मतलब दो कंपाउंड्स के बीच में हो रहा है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्डिंग हो रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इंट्रा में क्या होता है, एक ही मॉलिक्यूल है और उसके अंदर खूब सारे एटम्स है, राइट। तो आपस में एटम्स में ही बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, ठीक है। तो ये दो टाइप का हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। इंटरमोलिकुलर के बारे में व्हेन वी टॉक अबाउट, सो वी आर जनरली व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। क्योंकि बॉइलिंग इंट्रा के केस में वी डोंट हैव एनी वाटर और अ सॉल्वेंट, ठीक है, इंटर के केस में, क्योंकि सिर्फ वही मॉलिक्यूल्स हैं पूरे मीडियम में, वही सारे मॉलिक्यूल्स हैं, यू डोंट हैव एनी अदर काइंड ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। लेकिन इंट्रा के केस में क्या होता है, लाइक व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द व्हेन यू टॉक अबाउट द सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे आपके साथ एक मॉलिक्यूल तो आपको पता है, लेकिन जो दूसरा मॉलिक्यूल होता है वो वाटर होता है या फिर कोई दूसरा सॉल्वेंट, ठीक है। तो जब हम सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करते हैं, सो वी टॉक अबाउट द हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो कि उस मॉलिक्यूल की वाटर मॉलिक्यूल के साथ में होती है, ठीक है। तो वो चीज अगर फॉर्म हो रही है तो इसका मतलब है कि वो मॉलिक्यूल जो होगा वो सोल्यूबल होगा वाटर में, ठीक है। और अगर नहीं हो रही है दैट मीन्स इट इज नॉट सोल्यूबल। So the lower members are miscible in water because of this formation of hydrogen bonding with the water molecule. The solubility decreases rapidly on increasing the length of the alkyl chain. And why does this happen? This is because of the hydrophobic part of the molecule increases. So basically we are talking about the number of carbon atoms, ठीक है। तो जितनी ज्यादा चेन बढ़ेगी, चेन मतलब द लेंथ ऑफ द चेन विल इंक्रीज, द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बड़े होंगे, पूरा मॉलिक्यूल बड़ा होगा, तो क्या होगा कि जो कार्बन वाला पार्ट होता है, जितने भी कार्बन एटम वाला पार्ट होता है अल्कोहल का, या फिर इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है। तो जितना बड़ा ये ग्रुप होगा आर या फिर आर और आर प्राइम, जितने बड़े होंगे ना उतने ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे, उतनी ज्यादा चेन बड़ी होगी। दैट मीन्स कि जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होगा मॉलिक्यूल का वो बड़ा होगा। हाइड्रोफोबिक पार्ट मतलब द पार्ट विच रिपेल्स द वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो अगर वो रिपेल करेगा पार्ट वाटर मॉलिक्यूल्स को, जो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं वो हाइड्रोफोबिक होते हैं, मतलब वो जब बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शंस एंड ऑल, जब वाटर मॉलिक्यूल उनके पास आता है तो दे स्टार्ट रिपेलिंग दैट वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। और ये जो कैपेबिलिटी होती है ये बढ़ती है व्हेन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज, ठीक है। सो
in short, we can say that when the chain increases, when the length of the chain increases or the number of carbon atoms increases, the hydrophobic part बड़ा हो जाता है and solubility कम हो जाती है. ठीक है, तो जब साइज बढ़ेगा solubility will decrease. तब हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जब ऑब्वियसली बात है, जब रिपल्शन ज्यादा हो जाएगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतना अच्छे से नहीं होगा या फिर पॉसिबल ही नहीं होगा, है ना. तो दिस इज द रीजन. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द सॉल्युबिलिटी इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ठीक है, तो इसको वी कैन सिंपली से दैट दीज एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर फेयरली सॉल्युबल इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स like for example benzene, ether, methanol, chloroform, etc. ठीक है, so these are the common organic solvents और उनमें वो soluble हो जाते हैं. and इसमें कोई ऐसा हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसा कॉन्सेप्ट नहीं होता बिकॉज दैट हाइड्रोजन, बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल इज अ पोलर मॉलिक्यूल. ठीक है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स पोलर नहीं होते, so they are fairly soluble. Then the last thing that we will discuss in the physical properties is about the odor. Odor मतलब smell. ठीक है, so we can say that जो लोअर मेंबर्स होते हैं, मतलब जो छोटे कम कार्बन एटम वाले एल्डिहाइड्स और कीटोन्स होते हैं, दे आर मोर पंजेंट. पंजेंट मतलब उनका स्मेल थोड़ा पंजेंट होता है. ठीक है, और ये जो ओडर है इट बिकम्स लेस पंजेंट और यू कैन से it will become better, more fragrant as the size of the compound will increase. मतलब जो छोटे जो कम कार्बन एटम वाले एल्डिहाइड्स और कीटोन्स होते हैं उनका स्मेल इज नॉट दैट गुड. इट्स पंजेंट, इट्स इरिटेटिंग काइंड ऑफ स्मेल. और when the size of the compound will increase or the number of carbon atoms will increase, it will become more fragrant. ठीक है, so as you must also remember that when we were talking about the applications, I told you that some of the naturally occurring aldehydes and ketones, they are used for adding flavors in the medicines and all, or in the fragrances. ठीक है, तो this is because of their this physical property of having a good odor or a fragrant odor. ठीक है, so I'll write down the trend. मतलब I can write it as मोर फ्रेग्रेंट. मोर फ्रेग्रेंट मतलब बेटर होता जाता है एज साइज इंक्रीजेस. ठीक है, इसका मतलब फॉर द एप्लीकेशंस इन द फॉर एडिंग द फ्रेग्रेंसेस और फ्लेवर्स टू एनीथिंग वी नीड टू यूज लार्जर कंपाउंड्स. ठीक है, हम छोटे वाले कंपाउंड्स या फिर कम कार्बन एटम वाले कंपाउंड्स यूज नहीं कर सकते. ठीक है, so this was all about the physical properties of aldehydes and ketones. So what we discussed is the state, the boiling point, the solubility and odor. ठीक है, इसमें से boiling point and solubility in water, that is more important क्योंकि इसमें you have several concepts and the several trends that can take place. ठीक है, बाकी organic solvent में वो soluble होता है, odor से भी उतना ज़्यादा you cannot have a general ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है. ठीक है, लेकिन द मोस्ट द क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी इन वाटर से पूछे जाते हैं. ठीक है, सो यू नीड टू बी गेट थॉरो विद दिस. आफ्टर दैट वी कम टू द केमिकल रिएक्शंस. ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद वी विल टॉक अबाउट द केमिकल रिएक्शंस. ठीक है, बिकॉज बोथ द एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स दे हैव अ कार्बोनिल ग्रुप. बस डिफरेंस क्या होता है कि in aldehyde you have only one alkyl group attached to the carbon, or ketone में you have the alkyl groups which are attached or the substituents which are attached on both the sides of the carbon atom. ठीक है, तो मैं डिफरेंस बस इतना होता है. so because of this similarity जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं ना they are also similar. मतलब जो भी दोनों में रिएक्शंस होते हैं they are similar and हमें सेपरेटली पढ़ने की जरूरत नहीं है. so the first and the most important kind of reactions that occur in these aldehydes and ketones are the nucleophilic addition reaction. ठीक है, तो nucleophilic addition मतलब a nucleophile is being added to a molecule. ठीक है, तो
And why this happens is again the same reason which I did just discuss in the case of the boiling point, कि ये जो कार्बोनिल ग्रुप होता है इसमें there is a lot of difference in the electronegativity of the carbon and oxygen atom. ठीक है, so because of that the separation of charges take place और polarization हो जाता है. ठीक है, तो now separation of charges की वजह से क्या हो जाता है, O minus because it is more electronegative and C plus. ठीक है, तो जब ये स्ट्रक्चर हो जाता है आफ्टर पोलराइजेशन, तो ये जो C प्लस है बिकॉज इट इज हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज, सो इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर. इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, ठीक है. वाई? क्योंकि ये प्लस है, तो पॉजिटिव चार्ज को हम लोग इलेक्ट्रोफाइल से डिनोट करते हैं. ठीक है, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर मतलब इट इज बेसिकली इनवाइटिंग द डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल कि कम एंड अटैक ऑन मी. ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं कि बिकॉज इट इज हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज, सो बेसिकली it is inviting the negative charge to come and react with it or get added to that molecule, that carbon atom. ठीक है, और inverse of that is O minus. O minus को ये हमारा, क्योंकि because there is a negative charge, so it will invite any positive charge. And generally जो reactions हम पढ़ेंगे उनमें ये प्रोटॉन होता है. ठीक है, तो जो O माइनस होता है जनरली ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, मतलब इनवाइट करता है. तो जो भी मीडियम में प्रोटॉन होता है वो इट सिंपली रिएक्ट्स विद दिस O माइनस और ये OH बना सकता है. ठीक है, तो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर इन द एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, so as I told you that it invites the nucleophiles, so that is why the name is nucleophilic addition. ठीक है, so the one thing that you need to understand is the what is happening to the geometry of this after this reaction. तो इसमें क्या हो रहा है कि when the nucleophile is attacking this electrophilic carbon, so it is attacking from a direction which is perpendicular to the plane of sp2 hybridized orbital. ठीक है, so when we were discussing the structure of the carbonyl group, तो वहां पे हमने डिटेल में we discussed कि ये ट्राइगोनल कोप्लेनर ज्योमेट्री होता है. मतलब ठीक है, सपोज करो यहाँ पे ए लगा है, कोई एक सब्स्टिट्यूएंट है, ये बी है. ठीक है, ये हमारा कीटोन है, कोई कार्बोनिल कार्बन है. ठीक है, तो ये तीनों जो होंगे ना, मतलब ए बी सी और ओ, ये चारों एटम्स या फिर चारों सब्स्टिट्यूएंट्स, चारों चीजें दे आर इन अ सेम प्लेन, एक ही प्लेन पे हैं. ठीक है, और इसी वजह से ये ट्राइगोनल कोप्लेनर ज्योमेट्री होती है एंड द बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री सबके बीच में. ठीक है, सो व्हाट हैपेंस, ये सब एक प्लेन में है. लेकिन जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन से. परपेंडिकुलर मतलब इट इज कमिंग लाइक इट इज जस्ट गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ पेपर. मतलब आप ऐसे समझो कि परपेंडिकुलर, जैसे जेड एक्सिस होता है, जेड एक्सिस इज पॉइंटिंग इनटू द प्लेन ऑफ पेपर और वो उस डायरेक्शन में आके अटैक कर रहे हैं. ठीक है, सो अभी ये जो ऑर्बिटल्स होती हैं ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होती हैं. जो कार्बन की ऑर्बिटल्स हैं दे आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड. ठीक है, लेकिन आफ्टर दिस अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल जो इंटरमीडिएट बनता है दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड. क्यों? क्योंकि जब न्यूक्लियोफाइल लग जाता है, सो यू हैव 4 सब्स्टिट्यूएंट्स व्हिच आर अटैच्ड ऑन द कार्बन. ठीक है, तो इफ आई वांट टू ड्रॉ दिस, तो ये हमारा इनिशियल है जो कार्बन ग्रुप है, दिस इज Nu माइनस. तो Nu माइनस मतलब न्यूक्लियोफाइल माइनस विद नेगेटिव चार्ज, इट इज अटैकिंग ऑन दिस कार्बन एटम. ठीक है, लेकिन ये सेम प्लेन से अटैक नहीं करेगा, ये परपेंडिकुलर अटैक कर रहे हैं. ठीक है, तो वी विल गेट द इंटरमीडिएट विच इज समवॉट, ये हमारा कार्बन है, यहाँ पे ए लगा दो. आई एम यूजिंग द डैश एंड द वेज रिप्रेजेंटेशन हियर. ठीक है, क्योंकि अब जो इंटरमीडिएट बना है वो कोप्लेनर ट्राइगोनल कोप्लेनर ज्योमेट्री का नहीं है. ठीक है, वो क्या है, जब ये न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा तो दिस विल बी समवॉट दिस काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर. ठीक है, तो ये क्या था, जो कार्बन था वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स था. आफ्टर दिस अटैक जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा ना, दैट विल चेंज टू sp3, क्योंकि अब 4 चीजें लगी हुई हैं. ठीक है, 4 चीजें लगी हुई हैं. The 4 substituents are attached to the carbon atom, so that is why this hybridization will change to sp3. और यहाँ पे जो ज्योमेट्री था वो क्या था, ट्राइगोनल कोप्लेनर. ठीक है, ये हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है पहले.
and this geometry will now be tetrahedral. ठीक है, because of this sp3 hybridization. Fine. दिस इज जस्ट द इंटरमीडिएट, क्योंकि अभी देखो जब न्यूक्लियोफाइल अटैच हो चुका है तो C प्लस और Nu माइनस ये आपस में ऐड हो गए, तो दिस चार्ज हैज गॉन. ठीक है, अब चार्ज किस में बचा है? O माइनस पे. तो अब क्या होगा? अब सपोज देयर इज सम पॉजिटिव चार्ज आयन, और वी कैन से सपोज देयर इज अ प्रोटॉन इन द रिएक्शन मीडियम. ठीक है, तो वो प्रोटॉन अब जाके अटैक करेगा, या फिर दैट प्रोटॉन इज कैप्चर्ड फ्रॉम द रिएक्शन मीडियम बाय दिस ऑक्सीजन, बाय दिस O माइनस, टू गिव अस अ न्यूट्रल प्रोडक्ट. ठीक है, तो मान लो यहाँ पे H प्लस जो है वो आ रहा है एंड ये OH. ठीक है, तो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट एंड दिस इज द न्यूट्रल. ठीक है, ये न्यूट्रल हो चुका है. सो दिस इज हाउ द मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इज. बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. लाइक व्हेन वी अभी ऐसे तो ये जनरल रिएक्शन था. ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द रिएक्शंस इन डिटेल, मतलब स्पेसिफिक काइंड ऑफ अ रिएक्शन और उसका एप्लीकेशन क्या होता है, क्या नया प्रोडक्ट बन सकता है. ठीक है, सो टॉकिंग अबाउट द रिएक्टिविटी, एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन द कीटोन्स इन दीज काइंड ऑफ रिएक्शंस. और ऐसा क्यों होता है? दिस इज बिकॉज ऑफ द स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर. ठीक है, क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड में हमारे पास सिर्फ एक R ग्रुप लगा होता है और कीटोन्स में हमारे पास 2 R ग्रुप लगे होते हैं. ठीक है, तो इसका मतलब इस कार्बन एटम के पास में जो कम ज्यादा जगह है इन टॉकिंग अबाउट द एल्डिहाइड, बिकॉज के पास बस एक जगह हाइड्रोजन है और एक एल्काइल ग्रुप है. ठीक है, तो दिस हैज मोर ऑफ अ स्पेस. ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल कैन इजिली अटैक. जब वो अटैक करेगा तो उसके पास बहुत जगह है, वो अटैक कर सकता है. ठीक है, लेकिन अगर कीटोन का ग्रुप बहुत ज्यादा बड़ा है, एल्काइल ग्रुप, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट बहुत बड़े हैं, देन इट माइट बी द केस कि न्यूक्लियोफाइल को जगह ना मिले बिकॉज ऑफ द स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर. ठीक है, तो हिंड्रेंस हो उसे रिपल्शन होगा. जब एल्काइल ग्रुप्स बड़े होंगे तो दे विल आल्सो रिपेल द न्यूक्लियोफाइल. ठीक है, सो बिकॉज ऑफ दिस स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर्स द एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव. ठीक है, ऑल्सो ये जो दोनों एल्काइल ग्रुप्स होते हैं, इन द केस ऑफ कीटोन्स दे रिड्यूस द इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल कार्बन ड्यू टू द इंडक्टिव इफेक्ट. क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि जो R ग्रुप्स होते हैं वो इंडक्टिव इफेक्ट, मतलब वो एक तरीके से आप ऐसा समझो कि इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ाते हैं. ठीक है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को बढ़ा देते हैं जो एल्काइल ग्रुप्स होते हैं. तो इस वजह से बिकॉज ऑफ दिस इंडक्टिव इफेक्ट द एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव. तो if we need to summarize, तो nucleophilic addition reaction में we have discussed 2 things. First, the mechanism, कि जो overall mechanism है वो कैसे हो रहा है, और geometry और hybridization में क्या effect पड़ रहा है. ठीक है, we have discussed this. And secondly, we are talking about the reactivity. ठीक है, जिसमें कि aldehydes are more important. they are more reactive. पहला because of the steric factors. Steric hindrance is more in the case of ketones, and also because of the electronic reasons. ठीक है, you can say that plus I effect होता है, उसकी वजह से they are more reactive. कीटोन्स में प्लस आई इफेक्ट की वजह से रिएक्टिविटी जो होती है वो और कम हो जाती है. ठीक है, चार्ज पॉजिटिव चार्ज जो है जब इलेक्ट्रॉन्स और आएंगे तो वो और कम हो जाएगा. ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बेटर कब होगा? जब जगह ज्यादा हो, जो कि एल्डिहाइड्स में होती है, और पॉजिटिव चार्ज भी ज्यादा हो ऑन द कार्बन एटम, जो कि एल्डिहाइड्स में होता है. कीटोन उस पॉजिटिव चार्ज को कम कर देते हैं. ठीक है, आप ऐसा समझो. सो दीज आर द 2 मेन रीजंस बिहाइंड द reactivity of aldehydes. So this was all for today. In the next class, we will discuss the specific reactions that are the examples of this nucleophilic addition reaction. Thank you.